आदमी यहाँ नहीं ले सकता। हर आदमी यहाँ नहीं रह सकता। प्रभु शक्ति का कुछ आभास होता है? हाँ होता है, आदेश होता है मेरा उनसे कभी रात में। आदेश होता है? वो बोलते हैं गुरुजी से? हाँ, मैं अंदर रहता हूँ, बात होते हैं? हाँ आदेश आदेश मैं भी बोल। अच्छा। यहाँ कोई साधु नहीं टिकता है, कोई टिका ही नहीं 2002 से। আজ তপভূমি নর্মদা আপনাদের নিয়ে যাবে এমন এক নির্জন স্থানে যেখানে সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে এক মহাত্মার ধুনির আগুনে ভস্ম হয় সাংসারিক মায়া। চলুন আজ আমরা সেই মহাপুরুষের দর্শনে যাব এবং খুঁজব জীবনের গূঢ় রহস্য। নর্মদে প্রণাম। মা নর্মদার এই পবিত্র তটে দাঁড়ালে মনে হয় যেন সময় থমকে গেছে। আজ আমরা আবারও এসে উপস্থিত হয়েছি মায়ের সেই পুণ্য সোপানে, যেখানে প্রতিটা ধূলিকণায় মিশে আছে এক অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা। মায়ের এই পবিত্র কোল শুধু জলধারা নয়, এ যেন এক তপবন। এখানে ছড়িয়ে আছেন নাম না জানা কত শত সিদ্ধ সাধক আর পরম শিবভক্ত মহাত্মারা। তাঁদের ধ্যানের মৌনতায় লুকিয়ে আছে আদি ও অনন্তের রহস্য। আমাদের অন্তরের একটাই আকুল তৃষ্ণা, মায়ের পবিত্র দর্শনের সাথে সাথে যেন এই মহান সন্তদের আশীর্বাদ লাভ হয়। মা নর্মদা বড়ই করুণাময়ী। তিনি ভক্তের সেই নীরব প্রার্থনা বৃথা যেতে দেন না। মায়ের কৃপায় আমাদের এই আত্মিক অভিযাত্রা আজ সার্থক। এক অনন্য অজানার খোঁজে আমাদের এই পথ চলা নর্মদা কেবল একটি নদী নয়, এটি একটি জীবন্ত চেতনা। অনাদিকাল ধরে এই তটে কত যোগী, কত ঋষি তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় উৎসর্গ করেছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আজ তপভূমি নর্মদা আপনাদের নিয়ে যাবে এমন এক নির্জন স্থানে যেখানে সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে এক মহাত্মার ধুনির আগুনে ভস্ম হয় সাংসারিক মায়া। চলুন আজ আমরা সেই মহাপুরুষের দর্শনে যাব এবং খুঁজব জীবনের গূঢ় রহস্য। নর্মদার এই পবিত্র তপভূমিতে ধুনির প্রদীপ্ত শিখার সামনে যখন প্রতিধ্বনিত হয় আদেশ আদেশ, তখন অনুভূত হয় আদি সিদ্ধ গুরুদের উপস্থিতি। মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথের অমোঘ কৃপায় এই আদেশ শব্দই হয়ে ওঠে মোক্ষলাভের পরম মন্ত্র। এটি কেবল কোনো সম্ভাষণ নয়, এ হলো নিজের ভেতরের অহংকারকে ভস্ম করে আলোক নিরঞ্জনের চরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। নাথপন্থের এই রহস্যময় ডাক আমাদের মনে করিয়ে দেয় গুরুর নির্দেশই জীবনের একমাত্র পথ। আদিগুরু শিব এবং মহাযোগী গোরক্ষনাথের চরণে মস্তক নুয়ে আজ আবারও আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হোক সেই পবিত্র ধ্বনিতে আদেশ আদেশ আদেশ। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। महाराज जी इस जगह का कोई महत्व है क्या? हाँ तो बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी बताइए ना महाराज जी। ये नाथ जी की मणि है। अच्छा, ये समाधि भी नाथ जी का है। नाथ जी का मणि? हाँ, और ये सबसे पुराना है इधर। कितने साल पुराना है? ये तो होगा कम से कम 100-125 था कि एक बाबा जी रहते थे यहाँ। हाँ। रामसा बाबा नाम की सिद्ध मूर्ति थी। अच्छा। उसके बाद हमारे गुरु जी थे। अच्छा। कछु बाबा। हाँ। हाँ, वो रहे 2000 के साल में। वो सारा समय कत्ल का रात था। यहाँ पे सोए थे तो मूर्ति तो ऐसी थी कि 1 महीने में शरीर छूट जाता, नहीं भी अगर कोई उनका हाथ लगाता। 2000 के साल से यहाँ कोई रहता नहीं। 2000 यहाँ ये जगह ऐसी यहाँ कोई रहने नहीं देते, यहाँ के जो मालिक है खास। अच्छा। ये मैं इस जगह से 40-35 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा। ये गुरु जी का समाधि भी मैंने लगाया है शरीर छोड़ने के बाद। हाँ। इसके अंदर पैक कर दिया था, दरवाजा खिड़की सब लाश वो हो गई थी सब। हाँ। उठा तो टूट जाता था ऐसा। पर मैं अपने चद्दर भी लेकर
मिला के लाया गुरु जी को। और यहाँ जो मेरे को बता गए थे ऐसा सब कर दिया, हाँ। और ये मेरे हाथ से समाधि बना दिया। अच्छा। आनंद ले रहा हूँ 7 साल से मैं यहाँ। अच्छा। यहाँ कोई साधु नहीं टिकता है, कोई टिका ही नहीं 2002 से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है, तो हर आदमी यहाँ रह नहीं सकता। हर आदमी यहाँ नहीं रह सकता। प्रभु शक्ति का कुछ आभास होता है? हाँ होता है, आदेश होता है मेरा उनसे, कभी रात में आदेश होता है? वो बोलते हैं गुरुजी से? हाँ, मैं अंदर रहता हूँ, बात होते हैं? हाँ आदेश आदेश मैं भी बोल। তপবনের নিস্তব্ধতা ভেঙে যখন মহাত্মার সম্মুখে দাঁড়ালাম, মনে হলো এক প্রাচীন হিমালয় যেন নর্মদা তটে নেমে এসেছে। তার উপস্থিতিতে এক অদ্ভুত কম্পন, এক অলৌকিক এনার্জি। মনে প্রশ্ন জাগে, কি আছে এই স্রোতস্বিনীর বাঁকে? কেন যুগে যুগে সাধু, সন্ত আর অশরীরী মহাত্মারা এখানে ধ্যানে মগ্ন? কি সেই রহস্য যার টানে বারবার মন ছুটে যায় মা নর্মদার কোলে? যেখানে বিজ্ঞান থমকে যায়, সেখান থেকেই শুরু হয় নর্মদার এই রহস্যময় আধ্যাত্মিক জগৎ। এটি কেবল নদী নয়, এটি এক জীবন্ত চেতনা, যেখানে প্রতি পদক্ষেপে লুকিয়ে আছে রোমাঞ্চ আর আত্মার শান্তি। জীবনে একবার হলেও, শুধু একবার, মা নর্মদার এই পবিত্র তটে আসা প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। এই মাটি, এই হাওয়া আর মা নর্মদার দর্শন মানুষের জাগতিক উন্নতির এক অনন্য চাবিকাঠি। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কেবল আপনাদের সেই অমৃত পথের দিশা দেখানো। আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতিটা কোনায় কোনায় লুকিয়ে আছে গূঢ় রহস্য আর অমোঘ আধ্যাত্মিকতা। যেখানে বিজ্ঞান হার মানে, যেখানে যুক্তি স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখান থেকেই শুরু হয় নর্মদার অলৌকিক জগৎ। কলিযুগের এই ঘোর অন্ধকারে যখন চারিদিকে অশান্তি আর হাহাকার, তখন একমাত্র আশার আলো হয়ে জেগে আছেন মা নর্মদা। এই তপভূমি কেবল ত্যাগের নয়, এ হলো নিজেকে চেনার আশ্রয়, যেখানে প্রতিটি পাথর সংকর আর প্রতিটি বাঁক এক একটি ইতিহাস। আসুন একবার এই পবিত্র ধারায় নিজেকে সঁপে দিন, দেখবেন জীবন কোনো অজানা এক পরম সত্যের দিকে বদলে যাচ্ছে। सुरमंडल रमति हो मैया सुरमंडल रमति, थोड़ी दान थोड़ी दान थोड़ी दान, धुररड़ 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 रमति सुरवंती, ओम जय जगदानंदी देवी सकल भवन भरिराप विराजत, निज दिनानंदी हो मैया सब जुगानंदी, ओरे वाय गणनंदी गावत गंगा शंकर देवत देवा शंकर, तुम भव में टंदी, ओम जय जगदानंदी देवी मैया जी को पंचन झाल विराजत, अगर कपूरवादी हो मैया अगर कपूरवादी, नील नील रूप प्रकाशत अमर कांड में विराजत, ओंकार स्वर में विराजत, सीतावन में विराजत, धौलागढ़ में विराजत, सुरपाणी झाड़ी में
विराजत मांडव गण में विराजत घाटन घाट बुझावत रत्ना सागर में समावत ब्रह्मा जी जारत नारद जी वीण बजावत बोले बाबा डमरू बजावत गौरा मैया आरती उतारत कोटि रतन ज्योति ओम श्री जगदानंद श्री मैया जी की आरती नित दिन जो कोई पढ़ गावे भजत शिवानंद स्वामी जपत हरो हर प्राणी सुख संपत्ति पावी ओम जय जगदानंद मैया जय जगदानंदी ओम मैया जय आनंद गंधी ब्रह्मा हरि हर शंकर रीवा शिवा हरि शंकर रोद्रीवानंदी ओम जय जगदानंदी श्रीमान नर्मदिया श्रीमान गंगिया जड़ा शंकरिया नमो पार्वती हर हर महादेव। हर आदमी यहाँ नहीं सकता। हर आदमी यहाँ नहीं देख सकता। प्रभु शक्ति का कुछ आभास होता है? हाँ होता है, आदेश होता है मेरा उनसे कभी रात में। आदेश होता है? वो बोलते हैं गुरुजी से? हाँ मैं अंदर रहता हूँ, बात होते हैं? हाँ आदेश आदेश मैं भी बोल देता हूँ। अच्छा, इसमें भी लिखा है आदेश? हाँ है ना? हाँ और ये अंदर से भी कई बार दिन में अगर सुनसान होता है, हाँ, जब भी मतलब आता है कभी आवाज आते हैं? हाँ दिखते नहीं है, बाकी उनकी आवाज आती है। अच्छा। हाँ बहुत सिद्ध मूर्ति थी, बहुत अलग हिसाब था उनका। क्या करे, संसार साधुओं को पैसे के लिए मारे, पैसा तो था ही नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 14 रुपया निकला था इनके इसमें। अच्छा। बाकी मरने वाले मारने वाले मर गए 1 साल के अंदर से। अच्छा, गुरुजी को हत्या कर दिया था? गुरुजी तो ऐसे थे कि आज शरीर छूटे कल छूटे। अच्छा। अब यहाँ कोई रहता नहीं। हाँ यहाँ के गर्मी में सोए थे। हाँ। एक यहाँ पत्थर पटका हुआ था, ये लकड़ियों से मारा था इधर उधर। बाकी वो भी मर गए हो, यहीं आके मरा। एक तो उज्जैन साइड का, तो वो यहीं मरा आके। मोहाल तोड़ा, हाँ। मोहाल में उसने जहाँ खाया, हाँ। उस मोहाल के नीचे देवता बैठे रहते थे, खिड़की है वहाँ पे। अच्छा। उसके नीचे से, और वो दिल जैसी बनी थी माता जी, उसको जला दिया और वो रस उसने खा लिया। वो बड़ू तक भी नहीं गया, खत्म हो गया। अच्छा। उसका भी हाथ था मारने। फिर एक आदमी और था, उसका हाथ यहाँ से नहीं था, वो भी मर गया। सभी साले मर गए। साधुओं को दुख देने वाला थोड़ा जीता है कोई। नहीं। साधु को जिसने मार दिया वो गया सब दूर से, और उसकी जो भी है घर समाज ये वो सब खत्म हो जाता है। हाँ। क्योंकि इसकी रचना ब्रह्मा जी ने किया है। ये एक ब्रह्मांड है, इसको जो समझ ले वो ब्राह्मण है ना। तो ऐसे ही होता जाता है जो तक लिखा है। देखो हम यहाँ पढ़े हैं 7 वर्ष से, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला। प्रभु आपका नाम? मेरा नाम तो मेरा रामनाथ है। महाराज जी, गुरुजी के बारे में थोड़ी सी बताएं ना। गुरुजी के आदेश जैसे आते हैं, कैसे कौन सी आदेश आते हैं आपको? आदेश हमारे नाथों में प्रणाम को बोलते हैं। अच्छा। जो प्रणाम बोलता है उसको हम आदेश बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा है नवनाथों में। हाँ हाँ नवनाथों में है, और मैं सत्यनाथ ब्रह्मा का योगी हूँ। अच्छा। हाँ देखो, आदमी के अंदर अगर 99 गुण संपन्न है, हाँ। और यदि एक गुण खराब हो जाएगा तो 99 को भारी पड़ जाता है। अच्छा। वो 0 बन जाता है। हाँ। प्रभु, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है, सार में सार एक ही सार, भगवान का भजन, सब बाकी बेकार। अच्छा। भगवान के भजन के सिवाय कुछ नहीं है। ये अपना कुछ नहीं है। जैसा कर्म करता है आदमी वैसा चला जाता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसमें कर्म ही है आदमी का, कोई किसी का नहीं है। तो हमने तुमने बनाया है, बच्चा हमारा नाम ये है, जात ये है, कोई भगवान ने नहीं। वहाँ तो सब एक बरोबर है। यही है और कुछ नहीं है। भगवान अच्छी बुद्धि दी, मनुष्य को सद्बुद्धि दी, कुछ मार्ग से, अच्छे धर्म के मार्ग से लगा रहे, उसका भी जीवन अच्छा, अपना कुल का जीवन भी अच्छा चलता रहेगा। अच्छा। यही है और क्या है जीवन में।
कोई आया तो कि उसका दुख दूर हो जाए, एक रोटी आदि उसको दे दूँ। जी। नहीं, यही है जीवन में, कुछ नहीं। प्रभु मनुष्य को पूर्ण जन्म होता है? देखो ये क्या है, ये शरीर जब छूट गया जी। है ना, ये तो वहाँ चला जाता है, हाँ। बाकी 12 दिन यहाँ से नहीं जाता है, जहाँ से शरीर छूटता है, कि उसकी आत्मा, उसका जब कार्यक्रम होता है जब ही हो जाता है ना, वो जब तक भ्रमण करा करता है, उसके बाद वो फिर परलोक हो जाता है। उसको किसने देखा है? कुछ नहीं, जैसी उसकी कर्म गाथा है वैसा उसका काम हो जाता है। जी। यही है, कुछ नहीं। মহারাজ বলছিলেন এই তটে এমন এক অশরীরী শক্তি বিচরণ করে যা সবার সইবার ক্ষমতা নেই। যেখানে স্বয়ং ব্রহ্মলীন গুরু আজও শিষ্যের সাথে কথা বলেন, সেখানে রহস্যের গভীরতা মাপা অসম্ভব। সবকিছুই এখানে অদ্ভুত, সবকিছুই অলৌকিক। কবিগুরুর গুপ্তধন গল্পে পড়েছিলাম, তেঁতুল বটের কোলে দক্ষিণে যাও চলে। এখানে হয়তো সেই তেঁতুল বট নেই, কিন্তু আছে এই প্রাচীন নিমবট। এই বৃক্ষমূলেই কি লুকিয়ে আছে কোনো আধ্যাত্মিক নিশানি? কেন এই নিমবটের ছায়ে বসলে শরীর ও মনে এক অজানা শিহরণ জাগে? এটি কি কেবল প্রকৃতি, নাকি কোনো প্রাচীন যোগীর ছেড়ে যাওয়া আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য? উত্তর আজও অজানা। নর্মদা তীরের এই রহস্যময় জীবন আর মহাত্মার সান্নিধ্য। আজকের এই সফর আপনাদের হৃদয় কেমন রেখাপাত করল তা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আপনাদের একটি ছোট অভিজ্ঞতা হয়তো অন্য কোনো সন্ধানী মানুষকে পথের দিশা দেবে। নর্মদার এই অলৌকিক টানে আপনারাও একবার চলে আসুন এই পুণ্য তটে, অনুভব করুন এই অপার্থিব শান্তি। আমাদের এই আধ্যাত্মিক পথচলায় পাশে থাকতে এবং নর্মদা তীরের আরও অজানা রহস্য জানতে তপভূমি নর্মদা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরিবারের সদস্য হয়ে যান। আপনার একটি সাবস্ক্রিপশন আমাদের পৌঁছে দেবে আরও অনেক নিভৃত সাধকের দ্বারে। চোখ রাখুন পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, মায়ের কোলে শান্তিতে থাকুন। জয় মা নর্মদা, নর্মদে হর।